خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ محکمہ اینٹی کرپشن سندھ کی کرپٹ افسران کے خلاف کارروائیاں تیز۔ اینٹی کرپشن کمیٹی 1 کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ چیئرمین اینٹی کرپشن سید ذوالفقار علی شاہ نے 11 محکموں کے افسران کے خلاف انکوائریوں کی منظوری دے دی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے خورشید رحمانی کی اس رپورٹ میں۔ خلاف گھیرا تنگ محکمہ اینٹی کرپشن سندھ ایکشن میں آ گیا۔ سندھ کے وزیر اینٹی کرپشن سردار محمد بخش مہر کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ کرپٹ افسران کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ چیئرمین اینٹی کرپشن ذوالفقار علی شاہ نے 11 محکموں کے افسران کے خلاف انکوائریوں کی منظوری دے دی۔ 4 محکموں کے افسران کے خلاف 5 FIRs درج کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ 16 اوپن انکوائریز کی منظوری اور 8 محکموں سے انکوائریز کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق ریونیو کے افسران کے خلاف 2 مقدمات، تعلیمی بورڈ میرپور خاص کے خلاف 1، آبپاشی کے خلاف 1 اور محکمہ تعلیم کے افسران پر بھی 1 FIR درج کرنے کی منظوری دی گئی۔ اینٹی کرپشن حکام کا کہنا تھا کہ محکمہ ریونیو کی 1 انکوائری بند، جبکہ محکمہ کوآپریٹو کی ایک انکوائری کی منظوری دی گئی۔ محکمہ ریونیو، تعلیمی بورڈز، آبپاشی، اسکول ایجوکیشن، بلدیات، لائف سٹاک، ورک سروسز، خوراک، کوآپریٹو اور محکمہ محنت کے افسران کے خلاف انکوائریز کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اینٹی کرپشن سردار محمد بخش مہر نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ سندھ میں کرپٹ افسران کو کسی بھی صورت بخشا نہیں جائے گا۔ ان کے خلاف ملنے والی شکایات پر فوراً ایکشن لیا جائے گا۔ اب آپ کو بتائیں کراچی کے شہریوں پر واٹر کارپوریشن کے 52 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ میئر کراچی کا انکشاف، کہا شہری وفاق کا ٹیکس دیں لیکن ساتھ بلدیاتی اداروں کا ٹیکس بھی ادا کریں۔ کراچی مرتضی وہاب کی صدارت میں KMC ہیڈ آفس میں اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں میونسپل کمشنر سمیت مختلف محکموں کے سربراہان نے شہر میں بارشوں کے حوالے سے صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ میئر کراچی نے بتایا کہ KMC کے زیر انتظام تمام سڑکوں پر برساتی پانی کی نکاسی کے لیے بڑے اور چھوٹے پمپس موجود ہیں۔ تنقید کرنے والے کب تک تنقید کریں گے؟ ہم مثبت سوچ کے ساتھ کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ماضی میں بڑی شاہراہیں برساتی پانی سے ڈوب جایا کرتی تھیں۔ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، زحمت نہیں۔ مختلف ٹاؤنز کے جماعت اسلامی کے وابستہ چیئرمین مسلسل رابطے میں ہیں۔ مرتضی وہاب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اندرون شہر کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے برساتی پانی کی نکاسی میں وقت لگتا ہے۔ اور جمیلہ پمپنگ اسٹیشن کو نیا بنانے کے لیے مشینری منگوائی ہے جو کراچی پورٹ پر آ گئی ہے۔ جمیلہ پمپنگ اسٹیشن کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کے لیے 2.25 ارب روپے درکار ہیں۔ 20 کروڑ روپے کی لاگت سے جمیلہ پمپنگ اسٹیشن کو بہتر کرنے کا کام شروع کیا ہے۔ شہری وفاق کا ٹیکس دیں لیکن ساتھ بلدیاتی اداروں کا ٹیکس بھی ادا کریں۔ یہ وہ شہر ہے جو ملک چلا رہا ہے۔ شہری ہمارا ساتھ دیں تو ہمیں وفاق اور سندھ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 52 ارب روپے شہریوں پر واٹر کارپوریشن کے واجب الادا ہیں جو انہیں دینا چاہیے تاکہ فراہمی اور نکاسیاب کو بہتر کر سکیں۔ جو بھی وسائل ہیں ان کے تحت پوری توانائی کے ساتھ کام انجام دے رہے ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے مانسون بارشوں کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیاریاں تیز کر دی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں مانسون سیزن کی ہر سال تیاری کی جاتی ہے۔ بڑے نالوں کی صفائی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ چوکنگ پوائنٹس پر کام کیا گیا ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا CT21 سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے جو بارشوں سے متعلق پیش گوئی کی گئی ہے اس کے لیے تیار ہیں۔ سیزن کی ہر سال تیاری کی جاتی ہے اور پچھلے کوئی چند ہفتوں سے شہر کے تمام بڑے نالوں کی نکاسی کو یقینی بنانے کے لیے جو چوکنگ پوائنٹس ہیں ان کے اوپر کام کیا گیا اور بڑے پیمانے پر کام کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے 10-12 روز میں جو بھی بارش کا سپیل آیا ہے اس کے اندر وہ پریشانی یا وہ تکلیف شہریوں کو نہیں ہوئی اور نالوں نے پانی اچھے طریقے سے اٹھایا اور وہ پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا گیا۔ اب جو پریڈکشن ہے محکمہ موسمیات کی اس کے لیے بھی ہم گیئرڈ اپ ہیں، عملہ موجود ہے گراؤنڈ پر اور انشاءاللہ جو کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور لوگوں کی جس طریقے سے بھی خدمت کی جا سکے، ہم نے تمام چیزیں کی ہوئی ہیں۔ عملے کی چھٹیوں کو کینسل کیا ہوا ہے، عملہ ڈپلائیڈ ہے، تو انشاءاللہ جو بھی سچویشن ہوگی گراؤنڈ پر رہ کر اس کو فیس کریں گے اور شہر کراچی کی عوام کی خدمت کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ مہنگی بجلی کے ستائے عوام کے لیے خوشخبری۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ میں 2 لاکھ گھروں کو سولر سسٹم کی فراہمی چند ہفتوں میں شروع کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں 2 لاکھ سولر ہوم سسٹم کٹس کی فراہمی کے لیے دستخط کی تقریب۔ مراد علی شاہ نے کہا چاہتے ہیں سیلاب متاثرین کے 20 لاکھ گھروں کو بھی سولر سسٹم دیں۔ کم آمدنی والے خاندانوں کو 80% سبسڈی پر سولر سسٹم فراہم کیا جائے گا۔ سندھ سولر انرجی پروجیکٹ ورلڈ بینک کے تعاون سے شروع کیا جا رہا ہے۔ ٹیسٹنگ لیبارٹریز NED یونیورسٹی کراچی اور مہران یونیورسٹی جہاں ہم شوروں میں سیٹ اپ کر رہے ہیں
तो ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसके हर कंपोनेंट है। सरकारी बिल्डिंग्स को सोलराइज करना ताकि हम अपना बिजली का बिल कम कर सकें, एक 400 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट, एक 2-3 होंगे लेकिन टोटल 400 मेगावाट के ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स, जिसके ज़रिए हम सस्ती क्लीन एनर्जी ग्रिड में ऐड कर सकें और इस मुल्क के लोगों को और ख़ास तौर पे सूबे के लोगों को सस्ती बिजली मिले। इंशाल्लाह अगले कुछ हफ्तों में ये डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। इस वक्त जो हम सिस्टम्स दे रहे हैं उससे एक पंखा, 3 बल्ब और एक बैटरी जो मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए काम आएगी, ये एक सिस्टम हम हर घर में दे रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है जो इस वक्त बिजली का बहरान है और बिजली के बिलों का बहरान है, इस स्कीम के बाद सिंध सूबे के 2 लाख घर तो मुस्तफ़ीद होंगे, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है और आगे जाके हम और इसी किस्म की स्कीम्स कर रहे हैं। और इसके लिए हमने ख़ास तौर पे अपने सूबे की बजट में एक अच्छी खासी ब्लॉक एलोकेशन रखी हुई है 5 अरब रुपए की। और इसके साथ साथ हम इंटरनेशनल एजेंसीज से भी, ग्रीन क्लाइमेट फंड से बात कर रहे हैं, हम बाकी डोनर एजेंसी से बात कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो हम 20 लाख घर बनाने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि इन 20 लाख घरों को हम सोलराइज करें ताकि वो गरीब लोग जिनको सैलाब में सब कुछ उनका ख़त्म हो गया था, उनको घर के साथ, छत के साथ साथ बिजली की रिलीफ। कराची को सरसब्ज़ो शादाब बनाने का मिशन। कमिश्नर कराची की जानिब से शजरकारी मुहिम जारी है। सिर्फ 4 रोज़ में 26,000 से ज़ायद पौधे लगा दिए गए। 26,420 पौधे लगाए गए। जिला वस्ती में 3,456 पौधे लगाए गए। शर्की में 1,922, केमाड़ी में 3,107 पौधे लगाए गए। कोरंगी में 7,780, गरबी में 950 पौधे लगाए गए। मलीर में 5,530, जनूबी में 3,650 पौधे लगाए गए। मुहिम में 2 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर है। मुहिम 31 अगस्त तक जारी रहेगी। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने कहा, मौसम को मुतदिल बनाने की कोशिशों में मदद मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर्स अपने जिला में मुहिम की निगरानी करेंगे। यकीनी बनाएं 31 अगस्त से कबल मुहिम कामयाब हो। मुहिम का मकसद शहर में दरख्त की जरूरत पूरी करना है। मौसमियाती तब्दीली पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बन गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल बकीर अतीक रोमैती कहते हैं कि कराची के माहौल को साफ करने के लिए 1000 खजूर के दरख्त तोहफा देंगे। जर्मन और ओमान की काउंसिल जनरल का कहना है कि नौजवानों को भी शजरकारी मुहिम में आगे बढ़ना होगा। तफसीलात खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में। की माहौलियाती आलूदगी का शिकार कौंसल जनरल, सरमायाकार सब मुतहरिक। शहर कायद में माहौल को आलूदगी से पाक करने के लिए हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अपना हिस्सा मिलाने में मसरूफ अरब अमारात के कौंसल जनरल बकीर अतीक रुमैती ने कहा, 1000 खजूर और दीगर दरख्त तोहफा देंगे। सबको माहौलियाती आलूदगी से निपटना है। हम लोग भी ख़ास तौर में हूँ यूएई की तरफ से भी 1000 खजूर के दरख्त जो अच्छा वैरायटी, जो क्वालिटी वाला है, वो हम लोग कराची में ला के कराची का यूनिवर्सिटी में भी लगा देंगे। ज़ाहिर अपना गवर्नर साहब का इंसेंटिव के साथ और मुख्तलिफ स्कूल में, मुख्तलिफ कॉलेज में और कुछ अच्छे इदारों में भी लगाएंगे। जर्मन कौंसल जनरल रूडिगर लॉर्ड्स और ओमान के कौंसल जनरल समी अब्दुल्ला अल खंजरी ने शजरकारी की अहमियत और उसकी अफादियत बताते हुए कहा, नौजवानों को आगे आना होगा, माहौल दोस्त दरख्त लगाने होंगे। We all need more trees in the world to fight against climate change, which is something which concerns us all. It's a global issue, not only here in Pakistan, not in Europe, and planting trees is a key element to fight against climate change. So I appreciate that very much. It's a great initiative. ओमान इंशाल्लाह, ओमान अभी हम देखिए क्या मिलेगा ओमान से, लेकिन ओमान से क्या लाएगा, क्या कुछ जो इधर नहीं मिलता है। अच्छा कर मतलब खजूर का जार, कुछ अच्छा जार ऐसा इंशाल्लाह देखिएगा कैसा इधर लाएगा, कैसा। अभी मसला कौन सा जानते हैं, कौन सा जार सकता है इधर बनाने का, कौन सा अच्छा क्वालिटी इधर लाने का, इंशाल्लाह हम लोग ट्राई करेगा। यूनिटी फूड्स की नगीन रिजवी और ताबानी ग्रुप के डायरेक्टर हमजा ताबानी कहते हैं, नौजवानों को शजरकारी मुहिम में शामिल किया जाए। काम सिर्फ और सिर्फ यूनिटी फूड जैसे इदारों का या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, जैसे गवर्नर साहब का अकेले का नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा यूथ ये कैंपेन आगे लेके चलाए और हर घर से बच्चे निकलें और इसको अपनी इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके पब्लिक स्पेसेस में वहाँ पे ट्री प्लांटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो बस ये कहूँगा कि इस दफ़ा 14 अगस्त से आ रहा है
एक एक झंडा भी लगाएं घर के बाहर और पौधे भी लगाएं, इसलिए कि पौधे फ्यूचर के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरी दुनिया का, आप देखें जहाँ जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ ऑक्सीजन का लेवल अलग होता है, छाँव होती है और भी फूल दरख्त सारी चीज़ें होती हैं। शजरकारी मुहिम किसी भी कौम के मुस्तकबिल के लिए कीमती सरमायाकारी होती है। हमें मिनहसल कौम शजरकारी मुहिम को आगे बढ़ाना होगा। खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। कराची की सड़कों को डुबो दिया। सदर कोऑपरेटिव मार्केट समेत न्यू एमए जना रोड पर बारिश का पानी जमा हो गया। शहरी कहते हैं सड़कों से पानी की निकासी का कोई निज़ाम नहीं। शहर कायद में बारिशों ने मेयर कराची की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। जगह जगह जमा पानी इंतजामिया के दावों पर सवालिया निशान बन गया। बारिश तो थम गई लेकिन सड़कों से ताहाल पानी की निकासी ना हो सकी। सदर कोऑपरेटिव मार्केट में जमा पानी से दुकानदार और शहरी दोनों परेशान। बारिश के बाइस न्यू एमए जिना रोड की हालत भी अबतर हो गई। शहरी कहते हैं 2 बरस से सड़क की हालत खराब है, रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। पर ये बारिश जब से हुई है ना तो उसने डबल हमारा काम खराब कर दिया है। यहाँ पे रिक्शा, टैक्सी, ये सारे कारें आती हैं, नीचे लगती हैं। ये रोड मज़ीद बारिश की वजह से और ख़राब हो गया, पहले भी ख़राब था। और सीवरेज का तो निज़ाम 2 साल से वहाँ से आगे से लाइन बंद हुई है और कोई खोलता भी नहीं है, कोई पूछता ही नहीं, कोई आने वाला भी नहीं है जो यहाँ पे आके कोई रोड बनाए। यहाँ से लेकर पूरा एमेजिना न्यू एमेजिना रोड ये है बिल्कुल आखिर तक ख़राब है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बरसाती पानी की निकासी के लिए बेहतर निज़ाम बनाया जाए ताकि बारिश के बाद अदियत से बचा जा सके। कैमरामैन एहसन अमीन और साथी रिपोर्टर हम्माद के साथ फरहान खान, सिटी 21। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अस्पताल में बगैर रिकॉर्ड के 2 खवातीन का नर्सिंग अफसर की जानिब से इलाज करना मशकूक हो गया। सिक्योरिटी अफसर ने नर्सिंग अफसर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। साथ ही नर्सिस का एहतजाज इंतजामिया की जानिब से पीर तक शफाफ तहकीकात कराने की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर कर दिया गया। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अस्पताल में नर्सिंग अफसर पर सिक्योरिटी अफसर के तशद्दुद का मामला संगीन हो गया। नर्सिंग अफसर सदाम राजपर ने 2 खवातीन का रात के वक्त प्राइवेट वार्ड में बगैर रिकॉर्ड के इलाज किया, जिस पर यह शुबा जाहिर किया गया कि इलाज नहीं किया गया, जिस पर सिक्योरिटी इंचार्ज ने जवाब तलब किया। तसल्ली बख्श जवाब ना मिलने पर नर्सिंग अफसर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस पर दीगर साथी नर्सों ने मुख्तलिफ शुबों का बाइकआउट करके इंतजामी अफसरान के दफ्तरों के सामने धरना दे दिया, जो इंतजामिया की इंक्वायरी की यकीन दहानी पर ख़त्म कर दिया गया। कराची में अंधेर नगरी चौपटा साबिक आला अफसर की नो पार्किंग में खड़ी जाली नंबर प्लेट की गाड़ी बिना चालान के छोड़ दी गई। रिसाला पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली। जब मालूम हुआ कि गाड़ी साबिक एसपी की है तो बिना कार्रवाई के एजाज हाशमी के हवाले कर दी गई। रिसाला ट्रैफिक पुलिस को इतला मौसूल हुई कि सिटी कोर्ट के करीब एक सफेद रंग की कार नो पार्किंग में खड़ी है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ रहा है। इतला पर सेक्शन अफसर अपनी नफरी के हमरा पहुंचे तो सिंध पुलिस की नंबर प्लेट और नीली बत्ती लगी गाड़ी नो पार्किंग पर मौजूद थी। पुलिस ने लिफ्टर की मदद से गाड़ी को साइड पर किया और नंबर को जब चेक किया गया तो इंकशाफ हुआ कि गाड़ी तो रिटायर्ड एसपी एजाज हाशमी की है, लेकिन इस पर लगी नंबर प्लेट पुलिस के माल बरदार ट्रक की थी। बादशाह आला अफसरान की सिफारिश पर गाड़ी बगैर चालान साबिक एसपी एजाज हाशमी के हवाले कर दी। अब आपको बताएं कोरंगी वालों के लिए बुरी खबर। कोरंगी भर में कल गैस की फराहमी बंद रहेगी। सुई सदरन गैस कंपनी तर्जमान के मुताबिक 12.5 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। नई ट्रांसमिशन लाइन 20 इंच कुतर की है। गैस प्रेशर बेहतर होगा। कल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कोरंगी में गैस बंद रहेगी। कोरंगी और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के कुछ इलाकों में गैस बंद रहेगी। कोरंगी 36G, कोरंगी 36B में इतवार को गैस बंद रहेगी। कोरंगी सेक्टर 21, 28 और 29 में भी गैस नहीं मिलेगी। तर्जुमान का कहना है कि हाशिम गोट, मानसेरा कॉलोनी और अल्लाहबाद गोट में गैस की फराहमी बंद होगी। रुक करें जराइम की दुनिया का और अब आपको बताएं, लड़की को जिना अस्पताल से अगवा करके जिनसी ज्यादती का इल्जाम। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी ने मुलजिम गुलाम रसूल और मुलजिमा ज़ेबा को 17 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुलजिम की बीवी को अगवा करने और जिना में सहूलतकारी के इल्जाम में सजा सुनाई है। जज अशरफ हुसैन ख्वाजा ने मुलजिमान पर 1 लाख रुपये जुर्माना भी आयद किया। इस तगासा के मुताबिक मुतासर लड़की रूबी को गायनी वार्ड से नशावर जूस पिलाकर अगवा किया गया।
रूबी वहां मास्क और दीगर अशिया फरोख्त करने गई थी। लड़की को अगवा करके मुलजिमान एक घर ले गए जहां उसे ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिमान के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं यूरोपीय शिपिंग कंपनी मरकज़ के साथ रवा माह के आखिर में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने जा रहे हैं। मरकज़ कंपनी $2 अरब के करीब सरमायाकारी करेगी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयरहाउस, पुलों की तामीर और शिप ब्रेकिंग का बड़ा मंसूबा शामिल है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। बहरी उमूर कैसर अहमद शेख ने PNSC हेड ऑफिस में मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात की। कैसर शेख ने खुशखबरी सुनाई कि यूरोप की बड़ी कंपनी के साथ मुफाहमती याददाश्त पर अगस्त के आखिर में दस्तखत करने जा रहे हैं। मर्स कंपनी इब्तदाई तौर पर $2 अरब की सरमायाकारी का इरादा रखती है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउस, पुलों की तामीर, टर्मिनल और शिप ब्रेकिंग का बड़ा मंसूबा शामिल है। मर्स कंपनी अपने पुराने जहाज गडानी में शिप ब्रेकिंग करने का इरादा भी रखती है। इब्तदाई तौर पर उनका ख्याल है कि $2 अरब इन्वेस्ट करेंगे। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो आपका है ना, आप देख रहे हैं कि आपका माल निकल ही नहीं सकता 7 घंटे से ऊपर KPT से। वो तो चाह रहे हैं कि हम यहाँ वेयर हाउसिंग भी करें, वो ये चाह रहे हैं कि हम शिप ब्रेकिंग करें यहाँ पे, वो चाह रहे हैं कि हम ट्रांसशिपमेंट के लिए कराची पोर्ट को यूज़ करें। शिप साइकिलिंग का नाम दे रहे हैं जिसको हम शिप ब्रेकिंग कहते हैं, तो वो उसके लिए भी गडानी पोर्ट पे काफ़ी उनका इंटरेस्ट है। वफाकी वजीर बहरी उमूर ने बताया कि कैबिनेट कमेटी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज में मेंबर के तौर पर पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को निष्कारी फहरिस्त में शामिल करने की तजवीज़ दे दी है। PNSC स्ट्रेटेजिक इदारा नहीं है। PNSC जितना मुनाफा कमाता है इससे कहीं ज़्यादा कमाया जा सकता है। जी, PNSC को हमने स्ट्रेटेजिक नहीं करार दिया। मैं खुद उसकी जो फाइनेंस मिनिस्टर जिस कमेटी को हेड कर रहे हैं स्टेट ओन एंटरप्राइजेज के लिए, तो हम समझते हैं कि ये PNSC स्ट्रेटेजिक नहीं है, तो इसको प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए। पॉसिबल है, ये तो अब डिपेंड करते हैं ना, उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। प्रॉफिट वाइज वो अच्छा, PNSC का रिजल्ट अच्छे हैं। प्रॉफिटेबल इदारे को आप क्यों प्राइवेटाइज करना चाहते हैं? मतलब प्रॉफिटेबल का नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। वफाकी वजीर बहरी उमूर ने कहा कि KPT और पोर्ट कासिम की आमदनी बढ़ाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। कैमरामैन हैदर के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। सीमेंट दास सब पर बाजी ले गई। जुलाई 2024 में सीमेंट की एक्सपोर्ट में जबरदस्त इजाफा देखा गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। राइट ट्रैक पर गामजन, सीमेंट की बरामदात में बड़ा इजाफा। आल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अदादोशुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2024 में सीमेंट की एक्सपोर्ट में जबरदस्त इजाफा हुआ। जुलाई 2024 में सीमेंट की एक्सपोर्ट 21.65% का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2024 में सीमेंट की एक्सपोर्ट 5,47,162 टन रही। जुलाई 2023 की एक्सपोर्ट 4,49,792 टन थी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2024 के महीने में सीमेंट की मजमूई फरोख्त में 6.81% कमी से 30,10,000 टन रही, जबकि गुज़िश्ता साल जुलाई में सीमेंट की फरोख्त 32,30,000 टन रही थी। जुलाई 2024 के महीने में सीमेंट की मकामी फरोख्त 24,63,000 टन रही, जबकि गुज़िश्ता साल 2023 के जुलाई के महीने में फरोख्त 27,80,000 टन से 11.41% कम रही। आल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक ज्यादा टैक्स और बढ़ती हुई इनपुट लागत मुल्क के सीमेंट सेक्टर को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। अशरफ खान, सिटी 21। रामदी बिल की अदायगी पर रुपए दबाव का शिकार। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 16 पैसे और ओपन मार्केट में डॉलर 66 पैसे महंगा हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में रुपए की कदर में मिला जुला रुझान रहा। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे महंगा हुआ। अमरीकी डॉलर 278 रुपए 34 पैसे से बढ़कर 278 रुपए 50 पैसे का हो गया। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 66 पैसे महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 279 रुपए 75 पैसे से बढ़कर 280 रुपए 41 पैसे पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि हफ्ते के दौरान स्टेट बैंक के ज़खायर $7.5 करोड़ इजाफे से $9 अरब 10 करोड़ हो गए। इसी दौरान कमर्शियल बैंकों के ज़खायर $1 करोड़ 87 लाख कम होकर $5 अरब 28 करोड़ रह गए, जिससे रुपए पर प्रेशर देखा गया। ओपन मार्केट में एक हफ्ते में यूरो $1 56 पैसे सस्ता होकर $302 रुपए 24 पैसे का हो गया। बरतानी पाउंड $3 रुपए 87 पैसे सस्ता होकर $356 रुपए 53 पैसे का हो गया। एक हफ्ते में UAE दिरहम 4 पैसे कमी से $76 रुपए 36 पैसे पर आ गया। सऊदी रियाल 3 पैसे कमी से $74 रुपए 57 पैसे का हो गया है। अशरफ खान, सिटी 21। और यहाँ आपको खुशी की खबर से आगाह करें। कराची के नौजवान ने कारनामा कर दिया।
हुज़ैफ़ा शाहिद ने हांगकांग जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में हुज़ैफ़ा शाहिद ने हांगकांग के वांग जू क्यू को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। हुज़ैफ़ा शाहिद की फतेह का स्कोर बआसानी 11-6, 11-8 और 11-4 रहा। सेमीफाइनल में हुज़ैफ़ा ने मलेशिया के सेकंड सेट हरीफ को शिकस्त दी थी। क्वार्टर फाइनल में हुज़ैफ़ा शाहिद ने चीनी खिलाड़ी को स्ट्रीट गेम्स में हराया था। हुज़ैफ़ा शाहिद रवा साल अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया जूनियर ओपन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। हुज़ैफ़ा ने 2023 में मलेशिया में जूनियर ओपनशिप में गोल्ड हासिल किया था। बुलेटिन के इख्तिताम पर आपको बताएं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ज़रिए तमाम माई कराची नुमाइश आवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गई। आवाम के साथ साथ शहर की मारूफ शख्सियात ने भी आमद की। तफसीलात अयाज राना की इस रिपोर्ट में। कराची नुमाइश का दूसरा दिन, आवाम और अहम शख्सियात की आमद जारी। नुमाइश में लगे स्टॉल्स में लोगों की दिलचस्पी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेरे तमाम माई कराची नुमाइश में 400 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। माई कराची के मुंतजिम और साबिक सदर कराची चैम्बर इदरीस मेमन का कहना है अगस्त के माह में तमाम लोकल ब्रांड्स ने सेल लगाई है, जिसका फायदा आवाम को मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची की आवाम भी जोक दर जोक यहाँ पर आ रही है और जो परचेजिंग का सिलसिला वो जारी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये अगस्त के महीने में हमने इसका इनेकाद किया है और इस पर आज़ादी जो है डिस्काउंट तमाम लोगों ने ऑफ़र किया हुआ है। कहीं 30% है, कहीं 40% है। इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह खरीदारी का रुझान बहुत ज़्यादा है। फिर वही इंटरनेशनल फूड कोर्ट भी लगा हुआ है। माई कराची नुमाइश को देखने एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो पहुंचे। सिटी 21 से खुसूसी बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि कराची की अमन अमान की सूरत-ए-हाल अब बिल्कुल नॉर्मल है। माई कराची अवाम के लिए एक जरिया है तफरी और माशी सरगर्मियों का, जिसके नतीजे में लोगों को कम कीमतों में अशिया मिल जाती है। ये दैट्स अ गुड ओमन और हम यही चाह रहे हैं कि कराची बैक टू नॉर्मल माशाल्लाह जिस तरह आ गया है तो एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे नॉर्मल किस्म की शुरू हो जाए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा जनरेट हों ताकि शहर की वाइब्रेंसी जो इकोनॉमिक वाइब्रेंसी है वो वापस आ जाए। और क्योंकि इस शहर में बहुत ही टैलेंट है, बहुत ही इंटरप्राइज़ है, सिर्फ उसको सही तौर पे कैटर करने की ज़रूरत है कि उनको यूज़ करने की ज़रूरत है। अवाम की जानिब से माई कराची नुमाइश की पसंदीदगी का इजहार किया गया। कराची माशाल्लाह पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है और माशाल्लाह फूड में बहुत अच्छा है। $10 बिलियन इसकी एक्सपोर्ट है तो माशाल्लाह इस पे होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह, आइटम्स वगैरह भी बहुत अच्छी है और माशाल्लाह से डिस्काउंट भी अच्छा है। माई कराची नुमाइश इतवार के रोज तक कराची एक्सपो सेंटर में जारी रहेगी। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ अयाज राना,